Yes, friends, I'm Anuj. I hope you are doing well. I'm going to discuss fourth part of the chapter, which is most important chapter, as we know that monuments and historical places of India. So this is the fourth chapter, and we will cover a lot of sites, a lot of monuments in India. And now I'm going to discuss Khajuraho. As we know that Khajuraho is a historical place, and it is located in Madhya Pradesh. As we know that Madhya Pradesh is a state of India where there is a location of the Khajuraho temples. These are the most important temples. Remarks. First point, Khajuraho group of monuments built during the rule of the Chandela dynasty. So students, be prepared. Chandela dynasty rulers formed the Khajuraho temples. Okay, and now temples are famous for their Nagara style. What is Nagara style? As we know that there are three types of styles. Firstly, in southern India, there will be the Dravidian style. Dravidian style. Are you getting me? Okay, Dravidian style, and over there is a Northern India in Nagar style. Northern India Nagar style. So it is the form of the temples which is formed. It is the form of the temples. Okay, these are the styles, architecture styles. Okay, so students, third, Khajuraho group of temples were built together, dedicated to the two religions, Hindu and Jainism. UPSC, NDA, question will asked through this topic. NDA ask a question, note कर लीजिएगा, a question will ask through NDA. CDS, CAPF and RIMC and All India सैनिक स्कूल. तो अपन बात करें स्टूडेंट्स, याद रखिएगा द पॉइंट्स की. अ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. खजुराहो belong to या खजुराहो is related to which? Khajuraho is related to which religion? The answer is Hindu and Jainism. A option Hindu, B option Muslim, C option Jain, 4 option that is Buddhism. ठीक है स्टूडेंट्स, बी रिमेंबर कोड A, B, C and D. These are the code. यानी 1, 2, 3, 4 तो ऑप्शन में आंसर देगा कोड में 1 and 3 only. 1, 2, 3 and 4 all of the above, and 1 and 4 only, none of the above. What is the right answer? What is the right answer, students? 1 and 3. 1 and 3 only. This is the right answer. So that type of question will be asked in your exam. So that's why you should be remember and prepare for it. Okay. So the types of questions which are asked in NDA, CDS and all. So you should be prepared because the things is totally based on your MCQ. The class nature is also based on MCQ. So students, point 3 is most important point here. What will be asked? Khajuraho is located in which state of India? Khajuraho state.
MP, Madhya Pradesh. Khajuraho group of temples built together are dedicated to the two religion, Hinduism and Jainism. ठीक है? There are two religions. And fourth point, Khajuraho group of monuments, UNESCO World Heritage Site since 1986. Most important point. खजुराहो also UNESCO के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है and it was merged in 1986. I can say that it designated in 1986. So our points are clear or not? Yes. Any doubt? Which dynasty built this temple? And the right answer is Chandela dynasty. Chandela dynasty. Any doubt? Got it, everyone? Yes, sir. So now we are going to discuss the next Sanchi Stupa. And it is most important, Sanchi Stupa. Students, be prepared for this Sanchi Stupa. It is also a monument and it was built by the Mauryan rulers. It was built by the Mauryan rulers. It is a Sanchi which is also located in MP. Buddhist monument है. Originally commissioned the Emperor Ashoka the Great, and he was the ruler of Mauryan Empire. Erected Great Stupa kept the memorial या mortal remains of the Buddha. As we know that Buddha was dead, and after the death of the Buddha, see here, in which year Buddha born? 563 BC. Buddha born in 563 BC. BC बोले तो before Christ. So what is before Christ? As we know that this is the, ये सबने फॉर्म करना है. This is the most important thing. What is BC? What is AD? So today I am going to tell what is the difference between AD and BC. So this is the point where Jesus Christ, this is the point. Should we remember बेटा? सबने remember करना है. और this is the point. Here is a Jesus Christ. इसके पहले ना BC चलता है, that is a BC. इसके बाद AD. And this is a AD. AD means Anno Domini. And this is before Christ. Before Christ. As we know that, students, the most important point, if we see here, after the death of Jesus, this is called Anno Domini. And before Jesus, Jesus was present. इनसे पहले का टाइम पीरियड बिफोर क्राइस्ट. जीसस के पहले और जीसस के बाद. Points? Yes, sir. If we see, this is 1 BC, 2nd BC, 3rd BC, 4th and 563 BC. So Buddha was born. Students, Buddha was born. And if you see, Buddha was born. So if we see first AD, second AD, third AD,
4th AD. And as we know that 1857 AD, first war of independence. Yes. 1857 revolt. Revolt of 87. ठीक है. And when we was अपन कब आजाद हुए थे? 1947. 1947 AD. 2014. And last one is अभी क्या चल रहा है? 2026 AD. अभी क्या चल रहा है? 2026. सो AD आप देख रहे हैं ना, AD बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में AD एनाटॉमी. और जो ये है दैट इज जीसस क्राइस्ट के जीवन के पहले का, ये आप देख रहे हैं घटते क्रम में चल रहा है. 1 से किधर जा रहा है? 2 पे जा रहा है, फिर 3 पे जा रहा है, फिर 4 पे जा रहा है, ऐसे करके चल रहा है. इधर देख रहे हैं 1 से 2 3 4, नहीं सर घटते चल. तो ये आपको याद रखना है. दिस इज द जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का जो टाइम पीरियड है दैट इज नोन एज BC, एंड इनके बाद का जो टाइम पीरियड है दैट इज नोन एज AD. जीसस क्राइस्ट जब जिंदा थे उसके बाद का टाइम पीरियड AD, उनके पहले का टाइम पीरियड BC. Got it? So आप कभी AD और BC लिखा मिले तो समझ जाना, कंफ्यूज मत होना. That's the point. ठीक है. तो अपन बता दिए कि भाई हुआ क्या था कि जब बुद्धा की डेथ हुई तो बुद्ध के मरने के बाद बुद्ध के जितने भी बिलोंगिंग्स थे, लाइक बुद्ध जिसमें खाना खाते थे वो कटोरा, वो पात्र, एंड बुद्ध की जो राख वगैरह थी, जब बुद्ध को जलाया गया आफ्टर दैट उनकी जो राख थी मरने के बाद, जो एसेस थे उनको लोगों ने बांट लिया और वेरियस जगह पर जा करके, जैसे बुद्ध के दांत थे है ना, दांतों को ठीक है ले जा करके लोगों ने वेरियस जगह पर एक गर्भगृह बनाया. गर्भगृह बोले तो एक पायस प्लेस, जैसे हर मंदिर में एक पायस प्लेस होता है जहाँ पे सब लोग नहीं जा सकते, वो ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे गॉड की मूर्ति वगैरह रखी होती है. तो वो प्लेस गर्भगृह कहलाता है. बड़ी पवित्र जगह होती है. इट इज अ वेरी पायस थिंग, नो वन कैन इंट्रूड देयर. ओके. सो इस तरीके से बुद्ध के दांत को किसी ने लेकर जा करके दांत को रख करके एक क्या बना दिया? स्तूपा बना दिया और एक मॉन्यूमेंट बना दिया. तो ऐसे ही सांची के स्तूप में बुद्ध की राख रखी गई थी, उनके एसेस रखे गए थे, उनको रख करके पवित्र जगह पर वहां पे एक क्या बना दिया गया था? स्तूपा वाज फॉर्म, दैट इज सांची स्तूपा. वही कह रहा है कि द नेशनल एम्बलम डिराइव्ड फ्रॉम द अशोका सांची स्तूपा. और सांची स्तूप से ही हमारे नेशनल एम्बलम जो होता है हमारा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा. जैसे आप नोट पे भी देखोगे सांची स्तूपा मिलेगा, जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कहाँ पे सांची स्तूपा देखना चाहते. देखिए ये है सांची स्तूपा, दिस इज सांची स्तूपा. गॉट आपके बेटा आपके नोट्स में भी मिलता है ये सांची स्तूपा. और ये जो सांची स्तूप है इसमें जो ये आप देख रहे हैं ना, ये मेन इसका गेट है. अंदर जाओगे तो बीच में गोल गोल जगह होगी जहां पर वो अस्थियां रखी हुई हैं अंदर, और यहीं पर ऊपर पूरा क्या बना दिया गया है? आपका सांची का स्तूपा फॉर्म कर दिया गया. दैट इज सांची स्तूपा. गॉट इट? व्हाट लाइन? शांति से बैठे हैं आप, डोंट टॉक. बाद में लिख लेना किसी कॉपी से लिख लेना. यहाँ पे देखो. तो अब अपन पढ़ेंगे ग्वालियर फोर्ट. ये वाला डन हो चुका है. एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, इसमें से कुछ पूछना है तो बताओ. ठीक है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएं. स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है. चलो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट, व्हिच इज द पॉइंट, व्हिच इज ग्वालियर फोर्ट. स्टूडेंट्स, ग्वालियर फोर्ट को अपन देखने वाले हैं. तो ग्वालियर फोर्ट में क्या है? दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्ट. आज वी नो दैट ग्वालियर फोर्ट ग्वालियर में, इसके एमपी में ही है. ग्वालियर फोर्ट बिल्ट बाय द मान सिंह तोमर. ही वाज अ रूलर of the Gwalior. Man Singh Tomar built this fort. It is most important fort. Okay? Yes. So now we are going to discuss Bhimbetka caves. So not Bhimbetka caves. इसको most important करो.
अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत चीजें करानी है, जल्दी कर लो। भीम केव लिखो, भीमबेटका केव्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। I will share you the whole PDF, okay, so you should see over there, okay, but firstly सभी लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे रिमेंबर करना है, बस समझ लेना है, लिखना बाद का काम है, बाद में आप मॉनिटर पे कर लेना, ठीक है। अभी देखो भीमबेटका केव्स आर फाउंड, शेल्टर्स है बेसिकली, केव्स हैं, ये केव्स हैं और ये भोजपुर रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, क्या बोलेंगे, रायसेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, एमपी में देखने को मिलते हैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। रिमार्क है, इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कंसिडर्स 7 हिल्स, 750 रॉक्स, शेल्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। गॉट इट? भीमबेटका रॉक शेल्टर्स पेंटिंग्स आर्कियोलॉजिस्ट spans the prehistoric, Paleolithic, Mesolithic periods and as the historic period. Oldest caves हैं, लिख लो one of the oldest caves, लिख लो इनके बारे में, लिखो one of the oldest caves, लिख लो का नाम तो लिखो, पहले लिखो one of the oldest caves, दुनिया में सबसे पुरानी caves हैं, लिख लो। यहाँ पे जो ये देख रहे हो ना, ये वाली, इन पे ऑयल पेंटिंग्स मिले हैं, लिख लो ऑयल पेंटिंग्स मिले हैं, जो दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग्स में से एक हैं, ऑयल पेंटिंग्स मिले हैं। नेचुरल कलर्स का यूज किया गया है, नेचुरल कलर्स विल बी यूज इन दिस, ये नोट लीजिए, नेचुरल कलर्स का यूज किया गया है एंड आपके ऑयल पेंटिंग्स आर देयर। भीमबेटका केव्स काफी फेमस है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट्स में है, और खास बात यह है कि वाकाणकर महोदय ने इनकी सर्च करी है 1957 में। किसने करी है? वाकाणकर महोदय, 1957 में इसकी सर्च करी है वाकाणकर महोदय। तुम मत लिखना, ये बहुत डीप हो जाएगा, बस तुम इतना जान लो ये है कहाँ पे, भोजपुर रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी, और ये किस नदी के किनारे है? नर्मदा। देखो नर्मदा रिवर यहाँ पे फ्लो करती है बगल से, नर्मदा। चलो अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट अजंता केव्स। देखिए जब अजंता की बात आती है, एलोरा की बात आती है, तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये अजंता केव्स के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। अजंता केव्स बेसिकली औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में मिलते हैं, ठीक है। अजंता केव्स रॉक कट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे रॉक्स को काटा गया है और बुद्ध के पिक्स वगैरह बनाए गए। केव्स इंक्लूड पेंटिंग्स, रॉक कट, sculptures. Since 1983, Ajanta Caves has been designated in the UNESCO World Heritage Site. Ajanta group of caves famous for the paintings, fine example of Indian arts. The first Buddhist caves monuments Ajanta date 2nd and 1st century BC, यानी before Christ, ठीक है। During the Gupta rulers, गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड में बनाया गया था इसको, दैट्स द पॉइंट। गुप्ता वाज द रूलर ऑफ इंडिया एंड दे बिल्ट दिस मॉन्यूमेंट, ओके। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट। सभी लोग यहाँ देखें, इधर मत देखें, विवराज समझ लो। एलिफेंटा केव्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा। एलिफेंटा केव्स देख रहे हैं, इस तरीके से केव्स हैं। एलिफेंटा केव्स, हाथी गुम्फा कहते हैं इनको, ये भी मुंबई में पड़ते हैं, स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा। दे आर फाउंड इन मुंबई एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स, These are the most important sites, स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है एलिफेंटा केव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट में भी है। केव्स टेंपल डेडिकेटेड टू द हिंदू शिवा, कंसिस्ट ऑफ द बुद्धिज्म एंड बैक टू द 1st century BC। ये भी हिंदू रिलीजन और आपके बुद्धिस्ट बौद्ध रिलीजन को फॉलो करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एलोरा के बारे में, नहीं खजुराहो के बारे में। वो किसको डिपिक्ट कर रहे हैं? जैन और बुद्ध, जैनिज्म और हिंदुज्म, और ये बुद्धिज्म और हिंदुज्म को कर रहे हैं। लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है, भगवान शिव को, और बनाया गया है 2nd century BCE में। एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा आइलैंड बेसिकली मुंबई हार्बर से जो घारपुरी है उससे, ये जो मुंबई है ना, इस तरीके से जो मुंबई देखते हो, ये मुंबई, यहाँ से अंदर पानी में घुस करके आपका एलिफेंटा केव्स पड़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। राजपूताज रूलर्स ने इनको बनाया है, राजपूताज ने बनाया है। श्राइन इन द एलिफेंटा केव्स,
देयर आर द पीरियड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। तो यहाँ तक आपने समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये एलिफेंटा केव्स को आप लोग विजुलाइज कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलोरा केव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, नोट कर लीजिएगा एलोरा केव्स। दैट आर द एलोरा केव्स। Why it is important? Because it is also located in Aurangabad district of Maharashtra. औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। एलोरा केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। काली क्या लिखा है? कैलाशपति टेम्पल या कैलाशनाथ टेम्पल आर देयर। यहीं पे कैलाशनाथ टेम्पल है, लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है, लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल है एंड एलोरा केव्स के नाम से जाना जाता है। तो एलोरा केव्स में लॉर्ड शिवा का मंदिर है, दैट इज नोन एज द कैलाशनाथ, क्योंकि भगवान शिव को कैलाशनाथ कहा जाता है क्योंकि वो कैलाश पर्वत पर रहते थे, उसके नाथ है, नाथ मतलब लॉर्ड, गॉड है, ठीक है, इसीलिए इनको कैलाशनाथ कहा जाता है। लॉर्ड शिवा को नीलकंठ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विष पी लिया था, इसलिए उनका जो गला था नीला था, इसलिए नीलकंठ कहा जाता है। शंभुनाथ कहा जाता है ना। और इनको क्या कहता है? लॉर्ड शिवा को जो है आपका उनके गले में क्या था? कंठ, सर्प था, तो क्या कहते हैं? सर्प जिसके कंठ में, सर्प कंठ, ठीक है। तो लॉर्ड शिवा के लिए बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक, चलो अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, बिल्ड बाय द 8th सेंचुरी राष्ट्रकूटाज किंग कृष्णा। राष्ट्रकूट किंग कौन है? कृष्णा, जिन्होंने इसको बिल्ड किया है बिटवीन द 75 टू, देखिए ये आप याद रखने का कौन सा है, देखिए एडी कितना है, देखो जरा 756 एडी से लेकर के 773 है ना एडी के बीच में। एलोरा केव्स कॉम्प्लेक्स कंटेन्स द फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तीनों को रिपेक्ट करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है, नोट कर लो, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों को कौन से केव्स रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज एलोरा केव्स। नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। चलो यहां तक में कोई डाउट किसी को नहीं? तो अगला हम करेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये मुंबई में पड़ता है, इस तरीके से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में है, महाराष्ट्र में, रिमास का है। आप देख रहे टर्मिनस एंड ब्रिटिश आर्किटेक्चरल इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने इसको बनाया था। अगर छत्रपति शिवाजी की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, आल्सो नोन एज इट इज फॉर्मर विक्टोरिया टर्मिनस नाम था। बाद में इसको चेंज करके विक्टोरिया टर्मिनस को क्या कर दिया गया? लॉर्ड शिवाजी। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2004 में शामिल हुआ। छत्रपति टर्मिनस हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर भी है छत्रपति टर्मिनल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? 17 जोन है किसके? रेलवे के, और 18वां बन रहा है। तो 17 जोन जो है उनमें से सेंट्रल जोन कहाँ पे है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कहाँ पड़ता है? मुंबई में। यहाँ तक का डन है। क्लास आज यहीं पे वाइंड अप होती है। कल मिलते हैं नेक्स्ट आपके क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके मिस्टर तरुण।